ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਆ कोई बात नहीं मिलियो मैनू कोई बात नहीं रायकोट कब कदों मर्जी आ जाओ इन्हां बच्चों दे सिर ते हथ रखे हो कनेडा तो आके कोई गल नहीं चिंता ना करो नो प्रॉब्लम ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰ ਆਰਐਸਐਸ ਆਲਦੋ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 1000-2000 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ 1000 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਦਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं मतलब हर तरीके से अपना खेड़ा जा रहा है तो आप सर हिंदी में बात करते हैं तो आप सर ये बताना चाहेंगे कि नंबर्स की बात करते हैं कि आप एक्चुअल नंबर्स अगर बात करें दिल्ली में आज की डेट आज मैं तो डेट भी भूल जाता हूँ कितनी है 28 दिसंबर को आपको एक अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है 10 लाख 15 लाख कितना किसान बैठा सर यहाँ पे आज हमारे हिसाब से पांचों वार्ड को 25 लाख किसान होगा 25 लाख सर आज होगा क्योंकि कल अपना जन्मदिन मनाया साहिबजादे ने कल तो बहुत ज्यादा कट था बिल्कुल क्योंकि 27 तारीख को रहा ने उधर से 30,000 आदमी शाम को एक टाइम आया था क्योंकि 27 तारीख को दिन मनाना था इसलिए अभी इधर आज भी 25 लाख आदमी और माननीय कृषि मंत्री तोमर जी को सर इस माध्यम से बताना चाहेंगे क्योंकि वो बोलते हैं कि लाख किसान से ज्यादा नहीं है पूरे इंडिया में आके देख ले क्योंकि सर उनकी थोड़ी मैथ कमजोर थी हमारे को उनके प्रिंसिपल सर ने बताया कि मैथ की ट्यूशन बहुत मांग करी थी छोटे होते तो मैं उनको थोड़ा वो सिखा रहा था कि माननीय तोमर जी मैथ भी आपकी कमजोर है और आपको कृषि गेहूं का भी नहीं पता क्योंकि आप बहुत फसल बीज चुके जाएंगे दिसंबर 30 तक और एक्सपोनेंशियल नंबर ग्रो होने वाला है सो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 20 तक 2 करोड़ किसान यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर ये कैसे हैंडल करेंगे वो 2 करोड़ तो दिखेगा इनको हर जगह दिखेगा उसको 200 तो बोल नहीं सकते 2 करोड़ को छोड़ के बस वो पार्लियामेंट में जाएंगे हल्ला बोल देंगे ये अपने अपने घरों में पता नहीं कोई विदेश में पासपोर्ट से भी के होते हैं बाहर विदेश में सब भाज देंगे इधर सरकार खत्म हो जाएगी सर आपको लगता है फ्यूचर में जैसे हमने कई दूसरे देशों में कनाडा न्यूजीलैंड अमेरिका में देखते हैं कि जिस बंदे को जो एक्सपीरियंस होता है उस बंदा उसका मिनिस्टर बनता है आपको लगता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस तो ले ले कि कृषि के बारे में कुछ पता हो उसको अपने सलाहकारों से या किसानों से बात करनी चाहिए कि खेती कैसे होती है उसको पता होना चाहिए कितनी मुश्किल से खेती उगाते हैं बर्फ में खेती होती है जब कोहरा पड़ता किसान सर्दी में बाहर पानी लगाता जब काटते हैं जब इसको बोते हैं उसको पता होना चाहिए कैसे बोते हैं कैसे कितनी मुश्किल से शीना पैन डू यू वांट टू कम ऑन द कैमरा एंड आस्क एनी क्वेश्चंस हमारे साथ कनाडा के कुछ लोग जुड़े हैं शीना पैन जस्ट टाइप इन द कमेंट इफ यू वांट टू कम ऑन जस्ट से यस और नो तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे और भी लोग हैं वहाँ पे जो जिनकी उत्सुकता होती है सो आई कैन ब्रिंग यू ऑन सो हम ये फीचर पहली बार ट्राई करेंगे इन द मीन टाइम सर जो हमारे जैसे इन्होंने अभी भी बांटा हुआ है किसानों को पश्चिम दक्षिण हर जगह पे तो आप जो दूसरे किसान यूनियंस हैं जिनके हमारे पास अभी लोग पहुंच रहे हैं उन यूनियंस के लिए आपका क्या मैसेज है कि आप आओ हम तैयार उनको मतलब ये बोल रहे हैं कि भूख में मरोगे ठंडे में मरोगे ना जाओ नहीं कहीं नहीं हमारे पास है उनको सब कुछ मिलेगा खाना पहले भी आए हो ऑलरेडी पहले दूसरे राज्यों से किसान आए हुए हैं वो इधर रह रहे हैं अभी जो किसान आ रहे हैं
हम उनका जी आए बोलते हैं, वेलकम करते हैं, उनको इधर देते हैं, जैसे जो भी उनको सहूलत हमारे पास है हम उनको देते हैं। उनको टेंट लगे हुए हैं हमारे, उधर उनको बिस्तर देते हैं, खाना देते हैं, उनको हम वेलकम करते हैं, भाई आ जाओ हमारे पास, आओ हमारे साथ आओ। सभी किसान एक ही है, जत्थेबंदी कोई भी हो, कहीं की भी हो, पर आज एक किसान एक झंडे के नीचे है। किसी पार्टी के साथ उसका ताल्लुकात नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। किसान तो किसान है, बेशक बिहार का है, बेशक पंजाब का है, हरियाणा का है, किसानों का एक ही मुद्दा है, एक कानून वापस करो, हमारा और दूसरी कोई बात नहीं है। हमारा कानून वापस कराने का मतलब है हमने जो इन्होंने कानून बनाया वो वापस कर दें, वो कर दें, और हम करा के ही जाएंगे। डू और डाई, करो या मरो, हमको और भी बैठना पड़ जाए पर हम साथ में आंदोलन रखेंगे अपना। हम कोई इधर गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि इतने महीने से आंदोलन चल रहा है, आज तक किसी ने इधर कोई गल नहीं कर रहा, कोई इतने रौला नहीं पड़ रहा। हमारी माताएं भी आई हुई है, हमारी बहनें भी आई है, हमारे बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी हमारे से एज के आए हुए हैं, क्योंकि कई बुजुर्गों ने तो शहीदियाँ दे दी, 20 आदमी तो शहीद हो गए। हमारे को मरना मंजूर है, पर हम कानून रद्द करा के ही जाएंगे। हमारा एक ही मोटो है कि हमने किसानों ने कानून वापस कराना। हमारा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी जात से। हम किसान तो किसान है, बेशक वो 10 किले वाला है, चाहे वो 1 किले वाला है, जो किसान है किसान है। जो हमारे दूसरे भाई है वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, सब कले किसान नहीं दे रहे, हमारा दूसरे भाई साथ दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं, पैसे से दे रहे हैं, किसी और वजह से दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तान हमारे किसानों के साथ, बिल्कुल किसी के साथ। सर कुछ टेक्निकल सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे बोल रहे हैं कि वे फ्री मार्केट बना दी मोदी जी ने, कि पहले फ्री मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती थी। मेरी जानकारी में तो 76 से जैसे जब पहले कानून आए थे, वो मैं गलत हो सकता हूँ, आप मेरे को बताएं। मेरे को लगता है कि पहले भी किसान कहीं भी कुछ बेच सकता था। आपको लगता है इन कानूनों की वजह से फ्री मार्केट बनी है, या कानून का ईज मतलब आसान हुआ है किसानों के लिए जाके कहीं और फसल बेच? मेरी बात सुनो, एक तो हमारे घर के पास मंडी है, हमने जब फसल काटते हैं हमारे घर के पास मंडी है, उधर हमने बेच दी। हम एक अभी इतना फसल होती है, धान होता, गेहूं होता, हम उसको उठा के कहीं इतनी दूर लेके जाएंगे, डीजल तो पहले महंगा, रास्ते में इतने ट्रैफिक का एक्सीडेंट हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, इतनी दूर जाके हमारे को फिर क्या फायदा, जब हमारे घर के पास पहले ऑलरेडी मंडी बनी हुई है। पर अगर मान लो लेके जाना भी हो, मान ले 2 मिनट के लिए कि बहुत अमीर किसान है, कोई बहुत अमीर है, वो लेके जाना चाहता है कि मैं तो उत्तर प्रदेश जाके बेचूंगा, पर क्यों बेचना है? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें रोक टोक तो नहीं थी ना कोई, हम पहले भी फ्री थे। नहीं रोक टोक तो मतलब तो ऐसे, क्योंकि मेरे को याद है कि बड़ा आंदोलन हुआ था उस टाइम पे, राज्यपाल साहब के शायद आई थिंक बड़े लीडर थे, वो 6-6 किलो के लेके वो क्रॉस करे थे हरियाणा में, उस टाइम गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये तो पहले हमने तभी माफ करवा लिए थे कि हम कहीं भी बेच सकते हैं, वो तो पहले से ऑलरेडी, तो ये चीज है कहीं भी बेचो। बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है कि इन्होंने जैसे फ्रीडम दे दी किसानों को, भाई तो पहले फ्रीडम, वो तो पहले से ही है, पहले से ही है ना। जब से किसान खेती करे तब से अपनी फसल कहीं भी ले जाके बेच दो, और किसानों से आड़ती का जो रिश्ता था बहुत टूट था, वो जो अपनी फसल थी और कहीं लेके जाता नहीं था, क्योंकि अपने आड़ती के पास ही लेके जाता था, क्योंकि उसके पास उसका रिश्ता बहुत गहरा आड़ती और किसान का, क्योंकि जो किसानों की लिमिटें हैं उनकी फसल बिक्री करके पूरी नहीं होती, जो अपना आड़ती है वो हमारे को पैसे देता है, विद ब्याज अपनी लिमिट जो बनी है वो पहले वापस कर दो, उसके बाद आप हिसाब किताब कर लेंगे। अभी जो इन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया, किसान बेचारा कहाँ से चलाएगा, महंगाई तो पहले ही नहीं है, डीजल इतना महंगा, किसान की जेब में पैसा थोड़ा होता, किसान को तो 6 महीने के बाद पैसा मिलता, जब फसल पक जाती है उसके बाद किसान के पास पैसा आता है, पहले तो होता नहीं किसान के पास। जो आड़ती है बेचारा किसान आड़ती से पैसा लेकर आता है, तब अपना काम चलाता है। इन्होंने वो सर ये आड़तियों को किसान का दुश्मन बता रहे हैं बार बार, आपको लगता है हमारा दुश्मन थे? वो तो सर्विस दे, हमारा सर्विस करता है, सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, वो 1-2% कमीशन जरूर ले लेता है, पर अगर हम उनको हटा देंगे दूसरा बंदा 6-7% लेगा, 10% लेगा, वो 10%। जब कोई आदमी काम करता उसने कमीशन तो लेना ही, बिल्कुल भूखा थोड़ी, वो कैसे करेगा काम, उसने उसके लेबर रखी है, उसको भी पैसा देना, और हमारी फसल कोई बारिश आ गई उसको ढकना है, पक्की जगह रखना है, साफ करना है, बोरियों में डालना है, वो कमीशन तो लेना ही है उसने, उसका हक बनता है, लेना भी चाहिए उसको, वो क्या खाएगा, कमीशन ही लेगा, तो उसका वो काम है। किसान का काम है खेती करना, आड़ती का काम है उसकी फसल को ठीक ठीक करके उसको बोरियों में पैक करना, फिर वो जब वो ऐसे फ्री में करेगा वो कहाँ से खाएगा, ये बताओ। ये तो ऐसे जान के बदनाम कर रहे हैं आड़ती को, किसान को, वे टूट जाए सब। किसान की तो बहुत मंसूबे है कि आंदोलन खत्म हो जाए, अरे होगा नहीं, क्योंकि भगवान का घर बन गया। ये जो सच्चा किसान है ये सब सच्चा काम कर रहे, किसी से कोई बेईमानी नहीं कर रहा, किसी से कुछ मांग नहीं रहा। वो तो बोलता हमारे को एक कानून वापस करो, हमारे को एक कानून चाहिए नहीं, हम अपने जो पहले से संतुष्ट है, जो हमारे पास है संतुष्ट है, हम सब भाई भाई हैं,
हमने क्यों इधर आके सड़कों के ऊपर पड़ना था? जब एक गलत काम किया उसने हिंदुस्तान के लिए किया, एक दो घरानों को करने के लिए। देखो ये सब चीजें गुजरात की, गुजरात का प्रधानमंत्री, गुजरात का अडानी, गुजरात का अवानी, भगौड़े हुए सब गुजरात के, कर्जे माफ हुए सब गुजरात के, जो होया सब गुजरात के। और सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का मोर्चा पे काम कर रहा, सेवा निभा रहा था अपनी थोड़ी देर तक, तो मैंने वहां पे देखा रोज रात को जैसे युवक 1-2 बजे आते थे, किसी को डंडे मारे, वो बता रहे थे रामपुर में लाठीचार्ज हुआ, वहां डिटेन किया गया। ये तो संवैधानिक आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसकी उल्लंघना है। तो आपको लगता है सर जैसे पुलिस वाले हैं, चलो बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, ये इनको डंडा मारने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसी किसान पे डंडा ना मारा जाए? वो क्या करें, वो सरकार उनको पे देती है, पुलिस को सरकार पैसा देती है, क्योंकि पुलिस के भी भाई किसान है, उसका बाप भी किसान है, वो मजबूरी में पुलिस की नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और जो सरकार है उसको प्रेस कर रही है। सरकार को पही है कि तुम नौकरी के ऊपर लगे, तुम्हारे को हम मुअत्तल कर देंगे, सर्विस से निकाल देंगे, तुमने सख्ती करनी है। वो बेचारा दिल से तो करता नहीं है, उसको ऐसे सरकार की वजह से करना पड़ता है। और रोक तो फिर भी नहीं सकते ना आप, समझे? तो सकते नहीं। देखो जो बंदा घर से चल पड़ा 6 महीने का धान लेकर, देखा सब दे ही रहे हैं कुछ ऐसे, अब जबरदस्ती जाए किसी को कुछ दे दो ठीक है, पर कोई ऐसा नहीं बोलता भाई मेरे को ये दे दो। तो वो अपना पूरी तैयारी से चलते हैं। वो अलग बात है कि रास्ते में गुरु के लंगर लगे हुए, अगर ना भी हो उनके पास खाना है अपना, है उनके पास। तो ये बार बार मीडिया दिखाता है, जो गोदी मीडिया मतलब जो गलत मीडिया है वो दिखाता है कि किसानों ने सड़कें रोकी हुई हैं। भैया किसान रास्ते में बैरिकेड लेके थोड़ी चलते हैं अपने घर से, सड़कें रोके, बैरिकेड तो पुलिस ने लगाए हुए आगे, किसान ने तो कुछ नहीं, वो तो अपनी फसल लेके चले हैं गद्दों के साथ। खाली हाथ बेचारा आ रहा है किसान, बैरिकेड तो पुलिस ने लगाया। हम रोड के ऊपर ऐसा आना, हम किसी भी रोड के ऊपर निकल सकते हैं। जब हम पंजाब से ही आ रहे थे तभी हमारे को बैरिकेड लगा दिए, हमारे ऊपर पछाड़े छोड़ी, अथरू गैस के गोले छोड़े, हमने किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। हम तो अपना रोष धरना करके रोड के ऊपर आ रहे थे, हमारे को रोड के ऊपर भी नहीं चलने देते। क्या हम इनके देश के वासी नहीं है? हम टैक्स पे ही है, रोड टैक्स पे हमने रोड के ऊपर टैक्स दिया है, इन्होंने रोड खोद दिए, इनको पता है कि रोड खोद नहीं कर सकते, इन्होंने रोड खोद दिए। हमें वो नेक्सलाइट जैसे करते हैं, तो अपने आप को नेक्सलाइट नहीं बोलने देंगे, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं। और हमने कोई रोड भी कहीं भी नहीं खोदा, बल्कि हमने रोड जो खोदे हुए थे भरे हैं, भरे हैं वो रोड, तो इन्होंने खोदे हुए रोड भरे। स्पेशल जाके देख सकते, दिल्ली के लोगों को पूछ सकते कितने दिनों से यहाँ 1 महीने से बैठे, किसी को भी कोई टच किया वैसे वो कह रहे उनकी लोकल इकोनॉमी हमें घर दे रहे हैं, उनकी लोकल इकोनॉमी को ऊपर लेके गए हैं हम, बल्कि यहाँ पे लोगों की कमाई बढ़ गई और हाँ जी, वो जो गरीब लोग हैं हमारे साथ आके बैठ के खा रहे, नारे लगा रहे, हमसे आगे नारे लगा रहे हैं, हमारे आगे रहे मोदी मुर्दाबाद के नारे वही लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है देश का अन्नदाता रोड के ऊपर भूखा मर रहा है, ये देश के लिए धान कमाता है, गेहूं कमाता है, सब काम करता है। जो बेचारे गरीब बंदे हैं, हमारा नाज ही नहीं होगा कहाँ से खाएंगे? वो मांग के भी तो नाज ही खाते हैं, गरीब आदमी मांगने जाता है। इफेक्टिव गरीब होगा, क्योंकि आज 25 रुपए किलो गोई मिल रहा है, जो मॉल में चलेगा तो 150 मिलेगा, तो वो कैसे लेगा? बिल्कुल वो नहीं ले पाएगा, तो और भूखा मर जाएगा बेचारा। उससे जो मिडिल क्लास है वो भी भीख मांगने लग पड़ेगा। वैसे तो 80 करोड़ लोग तो उन्होंने भिखारी बना दी, जिनको नीले कार्ड पीले कार्ड के अंडर कर दिया। 80 लोग तो वैसे भिखारी बना दिए, जिनको 2 रुपए किलो कणक दे रहे भिखारी बना रहे। सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में कि हमको वोट डालने, इलेक्शन के चक्कर में यहाँ। और सर आप मैं एक और बात जो मैंने एक पॉइंट है जो बार बार मतलब उठाती नहीं मीडिया, क्योंकि देखें कि जो लोकल इकोनॉमीज है हमारी, चाहे वो विलेजेस की है, क्योंकि आज भी बहुत इंडिया विलेजेस में बसता है, तो वो मंडी से जो पैसा कमाया जाता है उसी से हमारी सड़कें बनती हैं, उसी से हमारा स्कूल का जो सरकारी स्कूल चलते हैं, मतलब काफी डेवलपमेंट होती है उसकी वजह से, गांव में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। जब ये काले कानून आ जाएंगे तो हमारे बच्चे वैसे ही गांव के इतने दबे कुचले हैं, ये तो उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे दुनिया से, उनको पढ़ाई से भी खत्म कर देंगे। मतलब ये तो बिल्कुल ही मतलब, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? ये मुद्दा कोई नहीं बता रहा कि हमारे ये बिल्कुल फांसी मतलब जहर पिला रहे हैं अपने गांव को खत्म कर रहे हैं, सबको जहर पिला रहे हैं। सरकार का मसला यही है, ना तो युवा पढ़े, ना कहीं हमारे से पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मांगेगा, पढ़ लेगा तो पढ़ लिख लेगा। जैसे अभी MSc का मुद्दा बच्चों ने उठा लिया, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे उनको पता लग गया कि काले कानून मोदी ने बना दिए, हमारे सबको जागरूक हो गए लोग, पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो गया। वो तो हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो बेकार हो जाएंगी, उनको ना पढ़ने देंगे, क्योंकि पढ़ने इसलिए नहीं देंगे कि हमारे से नौकरी मांगे। यही राज करते रहेंगे, हमारे बच्चे गरीब होके इनकी फैक्ट्रियों में काम करते रहेंगे, इन ग्राउंडों के अंदर, वो बेचारे सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे। हम तो मर जाएंगे, जो हमारे बच्चे हैं वो भी बेचारे तो कंगाल कर देंगे। इसलिए हमने जो मुद्दा उठाया किसानों ने, देश के किसानों ने, यही है कि हम अभी तक जो मर्जी हो जाए, जो हमारी आने वाली बारिश है, आने वाली पनीरी है, वो तो सुख शांति से रहेगी। हमारे तो कोई बात नहीं, हमारे तो हमारा जो सनात है, हमारे जो किसान है,
जहाँ जिम्मेदार है, जो सिख है, हरियाणा के है, पंजाब के है, हमारा तो कुर्बानियों पर इन्हीं इतिहास है। 1906 में एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, काला कानून, उनको भी पास कराने के लिए बहुत मतलब संघर्ष किया। उसी टाइम से संघर्ष चल रहे। जो भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह था, उसी से उन्होंने ये बनाया। हाँ जी, उन्होंने ये हमारा जो है वो उन्हीं का है। हाँ जी, ये बात भी बहुत जरूरी आप बता रहे हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है लेफ्ट का झंडा है। ये लेफ्ट का झंडा नहीं है, कुल हिंद किसान सभा का झंडा। इसको कंफ्यूज ना करें, इनको कंफ्यूज में लोगों को कंफ्यूज ना करें और बताए ना कामरेड है। इधर कोई कामरेड नहीं, कोई सियासी नहीं, और कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, सब किसान है। ये कुल हिंद किसान सभा का झंडा है। ये चाचा अजीत सिंह का बनाया हुआ झंडा है, इसलिए इसको बदली नहीं करते। और सर मेरे को एक और टेक्निकल आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जो मेरे कुछ दोस्त शहर में रहते हैं वो कहते हैं मोदी जी देश के भले के लिए हमेशा करते हैं, कुछ सोच समझ के किसानों के लिए किया होगा तो इसमें कुछ बुरा नहीं हो सकता। एपीएमसी मंडी में बहुत नुकसान हो रहा था वो, तो मैं उनको बता रहा था कि यार जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हरियाणा पंजाब का स्पेशली हाँ जी और पश्चिमी यूपी का, कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। जो आड़तियों का रिलेशनशिप है ये है, जल्दी से फसल आ जाती है, पैसे मिल जाते हैं, कुछ और सर्विसेज भी लेनी हो जैसे फाइनेंसिंग और ये सब कुछ मिल जाता है, सीड मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा एक बना हुआ सिस्टम है, इसको उखाड़ा ना जाए। तो बोला नहीं, मोदी जी ने जो बोला वो अच्छा होगा। सर आप मेरे को ये बताएंगे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है और जो मोदी जी का सिस्टम है, दोनों में जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम की जो अच्छाइयां है वो मोदी जी के सिस्टम में होंगी? क्योंकि हम हमेशा जब कोई तरक्की की तरफ जाते हैं हमारा क्या रहता है कि जो अच्छी चीजें वो रख लो, जो बुरी चीजें हैं उनको दूर किया जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मतलब से कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में अच्छी चीजें हैं जैसे सर्विस हो गई और एडीएमसी मंडियां और प्राइवेट मंडियों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल हाँ ये क्वेश्चन है कि इससे क्या अच्छाइयाँ खत्म हो जाएंगी या क्या अच्छाइयाँ आ जाएंगी? इसमें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मंडी सिस्टम में। जो हमारा सामान है, हमारी फसल है, जो भी है ये तो खरीदी जाएगी। अमीर लोग अमीर घराने खरीद के ले जाएंगे, जो पीछे बचेंगे गरीब आदमी, जैसे पहले सरकार के पास जाता था बेचते थे, वो उनको भी देते थे, मिडल मैन को भी देते थे, गरीब को भी देते थे। जब अच्छे अमीर घराने के ऊपर डाले वो तो अपनी मर्जी से रेट लगाएंगे, वो तो बोलेंगे मैं तो इससे कम देना नहीं, हम जब भूखे मरे हमारे को लेना पड़ेगा। और ऐसा भी बता रहे हैं कि जैसे जो अमीर घराने जैसे लोकल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय टोटल हो जाएगी, पर अगर कभी लीगली किसी को पकड़ना भी, वो कह रहे हैं कि तुम किसी बंदे को जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपने बंदे छोड़ दिए नीचे, तो एक का नाम बोल दिया सेखों ट्रेडर, एक का नाम बोल दिया चाहे ट्रेडर, तो जब तुम्हें लड़ाई करनी होगी वो सेखों ट्रेडर को तो पता भी नहीं क्या हो गया, तो उन केस हम उस पर कर देंगे, एक्चुअली बैठा पीछे बंदा है, तो हम लीगल में एक्चुअल में असली बंदे को तो हम पकड़ भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत ज्यादा सरकार के किसान के भोलेपन में को के अंदर उसको घेरा जा रहा है। सरकार की मंशा अच्छी होती ना तो उनको पहले तो कोरोना में ले आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ये, सेकंड एटीएमसी मंडी में कमियां है, मैं कहता हूँ कमियां, उसमें सुधार का। प्राइवेट मंडी लाने की क्या जरूरत है? आप देख लो प्राइवेट स्कूलों ने दूसरे स्कूलों का, प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटलों का हाल किया। सेम प्रॉब्लम यहाँ आएगी। हमारे पास एक थोड़ा शेल्टर था, वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। बेकार हो जाएंगे लोग, बेकार हो जाएंगे सब बच्चे सब बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल पहले तो यूनिवर्सिटी में हमारे को एडमिशन नहीं मिलती थी, सरकारी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट बन गया। प्राइवेट में हमारे बहुत महंगे बच्चे हैं, अभी देख लो तो गरीब आदमी प्राइवेट सारी यूनिवर्सिटियां वो तो बंद हो जाएंगी, सब बंद हो जाएगा। प्राइवेट कराने जो फीस ही बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि जैसे एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जैसे बाहरले कंट्रीज में भी होता है कि जो किसान है वो शहरों में जाके काम करते हैं, कुछ उस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी हम बाहर इनकी इकोनॉमिक अच्छी है, किसान को उन्होंने उठा अपने खेत पे और इसको मजदूर बना दिया शहर में, तो इसको मजदूर जब शहर में बना दिया ना उसके बाद किसान ये थोड़ी चली गई है। तो मैं सर ये अमेरिका कनाडा में होता है ना, वहाँ पे किसान 2% रह गए, 200% सब्सिडी दे रही है। WTO को जो सिग्नेचर की है ना, उसमें हमारे से सारी सब्सिडी ले लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग ये 3 कानून आए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। वही है ना, ये अगर ये पास हो जाते, फाइनल हो जाते हैं, इसकी प्रॉब्लम यही आएगी।
इसकी प्रॉब्लम यही आएगी कि हमारे से सारी सब्सिडी ले लेगी मिडिल जो कंट्री है ना, मिडिल कंट्री। मतलब कंपैरिजन ही गलत है, मेरे को तो लगता है करना ही नहीं चाहिए। नहीं, उनके साथ नहीं करना चाहिए। किनका कंपैरिजन करो, लोकल। हाँ जी, उधर तो हमारे 60 रुपए, उनका $1, उनके साथ तो हमारा कोई तालमेल ही नहीं है। कनाडा अमेरिका साथ उनके साथ। सर हमारे बाहर से बहन जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहते हैं कि हाउ इज इट लीगल फॉर मोदी पार्टी these types of laws without consulting। मतलब वही क्वेश्चन जो हमने पूछा कि ये लीगल है कि मोदी जी कोई भी कानून ले आते हैं बिना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, बिना कंसल्ट किए, जो फार्मर है जैसे इस कानून के लिए, या कई और भी कानून आए पर हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी 2 गवर्नमेंट ने एक भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाई, किसी भी कानून को डिस्कस नहीं किया, सीधा धार बना दिया। ये सब अनलीगल है, बिल्कुल अनलीगल काम है। उसने किसी को नहीं बताया, किसी किसान को नहीं बुलाया। इधर कोरोना का हल्ला गुल्ला कर दिया कि कोरोना आ गया, आप अंदर ही बैठो, बाहर नहीं निकलना। इतनी सख्ती कर दी कि घर के अंदर भी आप दूसरे से बात नहीं कर सकते, बोले 6 फुट दूर रहना। घर के अंदर भी बच्चों के मुंह बनवा दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद एक कानून लागू कर दिए, कोई पूछेगा नहीं। जब 3-4 महीने साल हो जाएंगे, कानून बन गया, सब कुछ हो गया, उनसे कोई पूछेगा नहीं, वो चलते रहेंगे। जब बाद में लेटर ऑन पता लगेगा 2 साल के बाद, जब तक तो हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। ये जो कानून है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। यही इसीलिए जितनी यूनियन है ना काम कर रही है, क्यों हम ये नहीं कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करवा सकते हैं। वो कह रहे हैं डब्बा यही देने तो जो चीज करानी चेंज करा लो। प्रॉब्लम रास्ता बन जाएगा, पटरी बन जाएगी, उस पर सड़क बना देंगे। सड़कें सरकारें भी उसको एक्सप्लॉइट करेंगी, स्टेट के सारे राइट खुलेंगे और सेंटर के पास हो जाएगी। तो हम तो बस स्टेट एक बन जाएगी, जो जिला परिषद की पंचायत होती है ना, ऐसे बन जाएगी, गांव की पंचायत जैसा हो जाएगा। उसके पास राइट नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है। हमें जैसे वो दे रहे, आपको पता होगा, बताएंगे लाइट का, बिजली का जो कानून है 2020, उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी जो भी गवर्नमेंट देती है प्लस करके देती है। अगर ये आ गया तो सेंटर से मांगनी पड़ेगी। स्टेट में वोटों लेने के लिए वो तो कर सकते हैं, और सेंटर वाले हमें नहीं कुछ भी देंगे, क्योंकि वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से उनको वोटें मिलेंगी। यही प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो बिल बना देंगे, ये हिंदुओं की नहीं है, ये मुसलमानों की नहीं है, सिखों की नहीं। ये प्रॉब्लम तो पाड़ देंगे दोबारा, फिर हम फ्रिक्शन करेंगे। खत्म होने दो, क्लोज आने दो। ये उन्होंने फिर सबको ऐसे पाड़ना है। तो अब तो सारे देखना फेमस होगा जैसे पहले एग्रीकल्चर से नफरत करते ना, अब सारे प्राउड से लिखाएंगे सन ऑफ फार्मर, क्योंकि हमारा सारे जैसे लिख रहे हैं बी आर फार्मर। वी आर फार्मर, तुम टेररिस्ट है, सब आदमी बोलता बी आर फार्मर। तो इसके लिए तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए मोदी जी को, आपने हमें अपनी इकट्ठा भी कर दिया और हमें आपने घर दोबारा हमारे को पता चल गया। बिल्कुल थैंक यू मोदी जी, आपको कुछ बातों के लिए थैंक यू, जो अच्छी है आपने करी है वो थैंक यू है उसके लिए। तो और सर कुछ जाते हुए कोई और टेक्निकल पॉइंट हो जाता है कि बार मिस हो गया, जैसे कोई बंदा क्यूरियोसिटी में पूछ लेता है। जैसे अभी इन्होंने बताया एमएसपी। हाँ जी, एमएसपी का मतलब ही क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम मांगते हैं जिसपे हमारा गुजारा हो, उससे हम प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हमने उसको बोलते भी इतना दे, ना कि हमने उससे मांगा है, ना हमने मांगा भी नहीं उससे। बिल्कुल कि हमारे सर मांगा तो हमने 2000 रुपया भी नहीं, जो इन्होंने अभी 18,000 करोड़ रुपए बांट दिया, ये जबरदस्ती भिक्षा दे रहे हैं किसानों को। वो तो हमने मांगा, पहले हमने मांगा नहीं हमारे को 2000 रुपया दे, क्योंकि हमारे को इतना ये काले कानून का वापस कर, हमारा जो काम चल रहा है खेती बाड़ी में, हमारा सब कुछ हो रहा है, हम उसी से संतुष्ट हैं। सर मैं यार एक और बात बोलना चाहूंगा, जो पूरी दुनिया में हमारे बहन भाई बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी किसान सर्दी में शहीद हो गए हैं, उनके लिए, उनको सपोर्ट के लिए हमें अवेयरनेस थोड़ी, क्योंकि मेरे को ऐसा दिल से लग रहा है कि क्योंकि बेचारों के बच्चे भी अनाथ हो गए हैं, वो हमारे लिए जंग लड़े हैं वो, तो उनके लिए सर आप क्या अपील करना चाहोगे जो बैठे कि क्या हेल्प होनी चाहिए? हेल्प आ रही है, सरबत बला वाले जो है दुबई से, वो कर रहे हैं कुछ मदद, वो दे रहे हैं, पैसे पेमेंट दे रहे हैं, और पूरी फैमिली का कर रहे हैं कि 10,000 रुपया पर मंथ देंगे। सेकेंडरी जो भी हमारे यहाँ पे जब हमारा संयुक्त मोर्चा है ना, जो फंड इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद कंप्लीट होगा, जो बचेगा ना वो सारा उसमें, क्योंकि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जब ये कानून वापस हो जाएंगे, हम तो घर चले जाएंगे, तो उनकी फैमिलीज को हम भूल ना जाएं, बस वही बात है। जो है ये क्लियर कर दिया, ये रिटर्न में संयुक्त जो हमारे यहाँ रिटर्न में ये एस्टेब्लिश कर देंगे उनकी पेंशन, रिटर्न में भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सर, ये क्योंकि बार बार ये आ रहा था, लोगों का फायदा भला कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मोदी की तरह मुकर जाएंगे, जैसे मोदी मुकर जाता है, मुकरेंगे। एडवाइजर केस भी कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर केस भी कर रहे हैं मोदी सरकार पे,
नहीं तो हमें क्या जरूरत थी यहाँ के बैठने के लिए। ये अगर ये क्वेश्चन ही ना खड़ा करते, ये जो काला कानून खड़े कर दिए, ये ना करते तो किसी को जरूरत थोड़ा दिल्ली के आगे आगे खड़े होके। उसी कारण उसके लीगल भी स्टेटस तैयार कर रहे हैं कि कैसे उन पर केस किया जाए नेशनल गवर्नमेंट पे। इतने बंदे को जो मर गए पहले। एक आपने अभी क्वेश्चन पूछा था भी मोदी जी को करते हैं अच्छा करते हैं, मुझे ये बता दो एक भी अच्छा नोटबंदी देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो अभी कोरोना में सारा देश बंद कर दिया, अभी नेक्स्ट डे सारा देश बंद रहेगा। एक वीक देते कोई कहाँ पड़ा है कोई कहाँ पड़ा, वहां पे बैठे भूखे मरवा दिया सारा कुछ। यही उनको अभी तक भी हमारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता इतनी दिल्ली में इतनी लोग भूखे मर गए थे और किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं उठाया। बस ये भी हमारे को दबाने की इसलिए कोशिश हो रही है किसानों को, तो इससे सारा देश में जागृति आ जाएगी। नहीं तो आगे पहले लोग सोए हुए थे, कोई स्टैंड नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम यही है, नहीं तो इनको कानून वापस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अंदर जब बुलाते हैं हमारे सीनियर को, ये मेरा सीनियर है, बुलाते हैं अंदर तो कह रहे हैं कि डब्बा यही रहने दो, जो चीज चेंज करवानी। प्रॉब्लम है ये अगर वो चेंज करवा ली तो जो हमारी ना रास्ता जो है ना डंडी बन जाएगी, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन हमारे को बहुत गालियां देंगे कि भैया ये हो गया, क्योंकि नेचुरल बात है कि उनका फ्यूचर हम ब्लास्ट करवा देंगे। सर ये बहन का क्वेश्चन आ रहा है बाहर नॉर्थ अमेरिका से, ये पूछ रहे हैं कि जो 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 जागरूक हिंदुस्तानी बाहर रह रहे हैं हिंदुस्तान से, वो कैसे मोदी जी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या वो अपना जो आक्रोश है कैसे जाहिर कर सकते हैं कि कुछ चिट्ठी लिख दी? आपको क्या लगता है कैसे वो बात ज्यादा से ज्यादा मोदी को मैसेज करें, सरकार को मैसेज करें, ट्विटर के द्वारा करें या ईमेल करें? ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मोदी का फोन मन की बात में सब फोन ऐप है उनकी, ऐप भी कर सकते हैं। वही कर सकते हैं भी जो आपने एक कानून बनाया वो ज्यादा सख्ती से ना बोले। जो आपने काले कानून बनाया इनको लोग नहीं चाहते, जो हिंदुस्तान का लोग इनको चाहता नहीं है। आप क्यों कर रहे हो जब हमारे को चाहिए नहीं? आप मेरे धक्के से क्यों दे रहे हो? और मोदी को गाली देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, प्यार से गाली उसको किसी ने अपना कोई दुश्मन थोड़ी है, वही तो दुश्मन। वो तो जो कानून बनाया हम तो कानून के चक्कर में हैं। 26 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहां उनको रिक्वेस्ट करें कि वो इंडिया ना जाए। अगर ना जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि किसानों की ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर। ये भी बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा सकता है। हमारे जो वहाँ सिख है वो कर रहे हैं। आपको भी जो भी जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए दूसरे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कंट्री में बैठे हुए उनको सारों को रिक्वेस्ट है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को हमारे यहाँ करने के वहाँ आने ना दे, जैसे मर्जी रोके वहाँ आने ना दे। ये मैसेज अपने आप सारे वर्ल्ड में फैल जाएगा पूरे नीचे। और सर जैसे अमेरिका में भी सरकार चेंज होगी जैसे जनवरी में, तो नए जो बाइडेन और कमला हैरिस आ जाएंगे, तो उनके तरफ से भी अगर कोई मैसेज आएगा अच्छा वो भी हमारी हेल्प करेगा, तो वो उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिकन को। तो वो नेचुरल बात है कि जनवरी में वो ज्वाइन कर लेंगे तो नेचुरल उनसे हमारा अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि ये तो कंपेनिंग उनकी कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, आपको पता ही ओबामा की उनके कंपेनिंग। चलो पॉलिटिकल बातों में नहीं जाएंगे, बट कुल मिला के अगर जो लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं वो रीच आउट कर सकते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ना कुछ बात करेगी तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा किसानों को। हमारा कोई मोदी दुश्मन नहीं, हमारी मोदी से कोई लड़ाई नहीं है। जो मोदी ने कानून बनाए वापस कर दे, बस इतना ही हो। बात से बाद इनको मैसेज करें। और सर जैसे भी लिए वापस होंगे, आपको लगता है अब इतना सबने प्यार बन गया यहाँ पे सोसिट्यूशन, तो 5-6 दिन तो लोग रुकेंगे दिल्ली है ना? इधर हमने जब कानून उसने वापस करा दिए, हम इधर बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, जब कानून वापस हो जाएंगे सब लोग इकट्ठे होकर खाना खाएंगे, जश्न मनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे शादी जैसा प्रोग्राम होगा, मिठाइयाँ बटेंगी, सारा चलो ठीक है जी। चलो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। फिर भी अगर कुछ होगा, हम आप तो सब युवा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से हो रहा है, तो जैसे क्वेश्चन हो गया आपका टाइम के लिए सर बहुत थैंक यू। मेरे को पता है आपको हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे तक रोक कर रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी।